I, Professor Bhavesh Kumar Chauhan, once again welcome you. We were discussing the numericals in the last half an hour. So, we will continue that discussion on another numerical. So, the outline will be only numerical of this half an hour discussion. So, see the data that we mentioned in previous discussion, at the end of it we said that this potential transformer is given which has a rating of 6900 115 volt. Okay, we are briefly reviewing this. The primary number of turns they are given as 22,500 on primary winding and then 375 turns on the secondary winding. Okay, and then with 6900 voltage applied to the primary. So, mean rated voltage is applied to the primary and the secondary is kept as open circuited. This is open. Okay. So, it is open circuited, meaning thereby on secondary you have no load. Okay. And in that situation the primary winding current is given as 0.005 ampere. Okay. And this primary current is lagging the voltage by 73.7 degree. Okay. So, every data is important, you must remember. Now, there is another situation which is given in the numerical, that with a particular burden connected to now on secondary instead of open you have a burden connected to the secondary side, and in that burden situation the primary winding current is now different. It is instead of 0.005 it is 0.125 ampere. Okay. So, it is a new value, it is a second condition and it is lagging, it is again lagging. Earlier also in first situation when it was an open circuit and on the secondary it was lagging, in second situation also it is lagging, but here the angle is different. Earlier it was 73.7 degree and now it is 53.1 degree. So, that is the situation. Beside that primary winding resistance is given as 1200 ohm. Okay. So, what is primary winding resistance? That is Rp. So, Rp is given as 1200 ohm. Okay. Now, primary winding reactance is given as 2000 ohm. So, that is xp, small xp you can say, primary winding reactance. So, the small xp is given as 2000 ohm. Then secondary winding resistance. So, you can say that is Rs. Rs is given as 0.4 ohm. So, you are seeing that there is a huge difference. On primaries side the resistance value is 1200 ohm, whereas on secondary side the resistance value is very low. You are seeing that it is only 0.4 ohm. This is a potential transformer which we are discussing. Okay. Then secondary winding reactance is given as 0.7 ohm. So, meaning thereby XS is given as 0.7 ohm. So, these are the data which are given. Now, what we have to find? Find the secondary current, that is Is, and the terminal voltage. Okay. On secondary side, that is say you can say Vs, okay, or Es in fact more appropriately, क्योंकि अगर drop negligible है तो then that will be approximately equal to Es. Open circuited है, you can find out. So, on secondary side you have to find the terminal voltage and you have to also find out the secondary current which is Is using the applied primary voltage which is given as 6900 plus J0. So, ये दिया हुआ था प्राइमरी वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज है जिसको आपने अप्लाई किया हुआ है एज द रेफरेंस, इसको रेफरेंस मानना है. ओके. नाउ फाइंड द लोड बर्डन ऑल्सो, हमको लोड बर्डन भी मालूम करना है वोल्ट एम्पियर में. Beside that we have also find the actual transformation ratio and also the phase angle. तो हमको actual transformation ratio भी मालूम करना है. ओके. और उसके साथ साथ phase angle भी मालूम करना है थीटा. ओके. तो now if the actual ratio is equal to the nominal ratio, ये कंडीशन भी दे रखी है कि nominal ratio अगर ये दोनों बराबर होंगे actual ratio nominal ratio under above condition, then what change should be made in the primary terms. कि अगर हमको दोनों को इक्वेट करना है, किसको, एक्चुअल रेशियो को, नॉमिनल रेशियो को, तो हमको क्या प्राइमरी टर्म्स में चेंज करना होगा, कितना करेक्शन करना होगा, ये भी इस क्वेश्चन में पूछा है. तो लेट्स टेक वन बाय वन. पहले देखते हैं नॉमिनल रेशियो कितना है. आप देखिए वोल्टेज रेटिंग दे रखी थी 6900 दे रखा था प्राइमरी पे,
इफ यू रिमेंबर सेकेंडरी पे दे रखा था 115, ओके, दैट वाज गिवन एज 115, यू रिमेंबर. सो दिस, तो ऑटोमेटिकली नॉमिनल रेशियो क्या आएगा, आप सिंपली रेटिंग से प्राइमरी रेटिंग को सेकेंडरी रेटिंग से डिवाइड कर देते हैं, तो देन यू विल गेट एट 60. तो 60 इज द नॉमिनल रेशियो. Okay, now primary winding turns, they are given as 22,500. So NP is given as 22,500. Now another data which is given as secondary winding turns, so they are given as 375. So NS is given as 375. Okay. Now turns ratio निकालना है, तो उसमें क्या होगा, primary turns divided by secondary turns. जैसे यहाँ पे हमने nominal ratio निकाला, तो turn ratio क्या होता है, turn ratio में आप number of turns को primary और secondary पे ले लेते हैं, तो that is 22,500 divided by 375 which will also come equal to 60. यूजुअली ये इक्वल होते हैं या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि नॉमिनल रेशियो टर्न रेशियो दे आर सेम इन वैल्यूज. सो नाउ नो लोड करंट इज गिवन एज 0.005. जब सेकेंडरी पे कोई भी लोड नहीं था तो करंट, नो लोड करंट दी हुई थी 0.005. यू see this, no load current is given as 0.005. So it is given as, so that is I naught, because no load current is notified, or the symbol used for no load current is basically I naught. So that is given as 0.005 ampere. Now no load power factor is given as, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में जब नो लोड था, सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं दिया हुआ था, तो उस समय पावर फैक्टर वाज गिवन एज 70, एंगल वाज गिवन एज 73.7, और उसमें लिखा हुआ था कि प्राइमरी जो वाइंडिंग करंट है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, इफ यू रिमेंबर. तो दैट वाज गिवन एज दैट यू नो दिस प्राइमरी वाइंडिंग करंट इज दिस एंड इट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय 73.7. तो उसी को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, कॉस 73.7. तो नो लोड पावर फैक्टर आएगा, क्योंकि सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं है, उसी समय का ये पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस cos theta, so that is 73.7, जिसको अगर आप evaluate करेंगे तो you will get the value as 0.28. ओके, एंड इसका साइन फैक्टर क्या आएगा, साइन अगर इसका एंगल लें, क्योंकि अगर हमको IM और IE वगैरह निकालने हो तो देन 73.7 इससे आएगा 0.96. सो प्राइमरी करंट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज IP इज गिवन एज 0.125. ओके, दैट इज गिवन एज 0.125 you see in second situation. सेकंड सिचुएशन में दिया हुआ है, तो ये प्राइमरी करंट IP है, ये सेकंड कंडीशन के लिए. प्राइमरी पावर फैक्टर सेकंड सिचुएशन के लिए क्या है, दैट इज एंगल इज गिवन एज 53.1 डिग्री, तो उसका कॉस लेंगे तो दैट विल कम एज 0.6 अप्रॉक्सीमेटली, एंड साइन फैक्टर विल कम एज 0.8. नाउ प्राइमरी वोल्टेज VP इज टेकन एज द रेफरेंस, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इट हैज टू बी टेकन एज द रेफरेंस, and therefore we can write that VP is like this, rated voltage दिया हुआ है VP. okay, IP जो है वो आपका करंट is this. अगर इस IP को एंगल्स के साथ ले लें तो आपको 0.6 आ रहा था कॉस एंगल सेकंड सिचुएशन में, याद रखिए, और यहाँ पे 0.8, तो ये हमने रख लिया है IP. तो IP को अगर आप बेसिकली कॉम्प्लेक्स नोटेशंस में देंगे, ओके, देन दैट विल कम एज like this and this by multiplying. So I naught क्या आएगा उसमें, अगर इसको फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो I naught will come as 0.28. ओके, ये फर्स्ट सिचुएशन में आप देखिए I naught, ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए, दिस इज नाउ फर्स्ट, कमिंग बैक टू फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन के लिए था, सेकंड कंडीशंस के लिए 0.125. अब फर्स्ट कंडीशन पे आए तो नो लोड करंट जो थी, दैट इज I naught इज नो लोड करंट, तो उसके लिए पावर फैक्टर कितना था 0.28 एंड देन 0.96. तो इसको रिजॉल्व कर दिया I naught को हमने 0.28 और माइनस 0.96. ये आपके IE और IM के रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो ये देख रहे हैं कि अब रियल वाला जो कंपोनेंट है जिसको कि I naught cos अल्फा कहते हैं, ओके, दैट इज कमिंग एज 0.0014, और जो इसका इमेजिनरी कंपोनेंट है दैट इज कमिंग एज 0.048. ओके, सो इवेंचुअली फेज़र जो दे रखा है दैट इज IS अपॉन IN इज द फेज़र डिफरेंस ऑफ IP और I naught. IP और I naught में अगर फेज़र डिफरेंस देखें तो वो बेसिकली आता है IS और IN के रेफरेंस में. तो ये किसके बराबर आएगा, IS बाई IN, वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन
एंड दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशंस क्या हैं, इफ़ यू सी इट देन यू आर गेटिंग, यू सी दिस 0.0014, ये आपके IM और IE आ रहे थे 0.48, तो ये देखिए 0.48 और 0. दिस और दिस, ये डिफरेंसेस के रेफरेंस में आप ले रहे हैं 0.075, तो ये दोनों फैक्टर्स में आपने देखा IP और ये जो I0 को आपने रिजॉल्व किया है IM और IE के रेफरेंस में, तो यहाँ अगर इसको माइनस करेंगे IP माइनस I0 के रेफरेंस में, तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया है और ये किसके बराबर आता है, ये दिस कम्स एज IS इंटू IN, IP माइनस I0 के जो फैक्टर्स को आपने माइनस किया है, ये याद रखिए ये I0 के फैक्टर्स हैं, उसको आपने माइनस किया है और ये आपका IP का फैक्टर है, IP में से माइनस किया है, तो यू आर गेटिंग IS बाई IN एज दिस फैक्टर, ओके। तो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। देन IS रिवर्स, फेजर डायग्राम में याद रखिए कि जब भी आप प्राइमरी में ऑपरेशन करते हैं तो सेकेंडरी की जो करंट है उसको रिवर्स ले जाते हैं उसी प्लेन में, मीन्स इट इज़ रिफर्ड टू देयर, तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या IS बाई IN, अगर आपने प्राइमरी ये निकाला है और इसको आपको रिवर्स करना है, प्राइमरी साइड में लेके जाना है, तो IS बाई IN का आपको मैग्नीट्यूड मिल गया IP माइनस I0 से, तो उसको रिवर्स करने के लिए आपको टर्न रेशियो का इस्तेमाल करना होगा, तो इसमें टर्न रेशियो से फिर उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब फर्दर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये आपको जो एक्सप्रेशन मिला है वो ऑलरेडी IS बाई IN का मिला है, लेकिन आपको चाहिए IS रिवर्स, तो इसके लिए n को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये एज ए कंप्लीट फैक्टर यू हैव गॉट, ओके। तो दैट नीड्स टू बी रिमेंबर फेजर डायग्राम से जो पिछली बार डिस्कशन किया था, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे, n कितना आया है आपका, जो n है टर्न रेशियो और नॉमिनल रेशियो, तो ये इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट IS रिवर्स, ये जो 60 को इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट IS रिवर्स, एंड IS रिवर्स विल बी इक्वल टू दिस, IS रिवर्स विल बी बेसिकली इक्वल टू दिस, ओके। तो 60 को सिंपली मल्टीप्लाई किया है इस फैक्टर में, देन ये फैक्टर यहाँ पे आ गया 0.336, you see this, and 0.312, 0.312, so that is the secondary current that you have got, okay। so secondary current अगर इसको एक सिंगल डिजिट में इवेल्युएट करेंगे सॉल्व करके, तो देन यू विल गेट IS एज इक्वल टू 0.48 एम्पियर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड, लेट्स से इन सीक्वेंस, क्योंकि हमको अगर सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट मिल गया, तो सेकेंडरी करंट की मदद से लेट्स से इवेल्युएट प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज, पहले EP निकालते हैं। EP क्या होगा, EP होगा जो आपने प्राइमरी पे वोल्टेज लगाया है उसमें से अगर प्राइमरी में जो ड्रॉप आ रहा है वाइंडिंग में, प्राइमरी करंट की वजह से प्राइमरी सर्किट में जो ड्रॉप आ रहा है अगर उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि EP क्या होता है, EP अगर प्राइमरी सर्किट के ड्रॉप को माइनस कर दें किसमें, VP में से, जो भी प्राइमरी सर्किट में ड्रॉप आ रहा है IP और ZP, तो आपको ये मिल जाता है। और इसी तरीके से VS क्या होता है, VS में थोड़ा डिफरेंट नोटेशन रहता है कि ES में से आप ड्रॉप करते हैं IS और ZS, सो दैट इज़ अ डिफरेंस। VS हमको लास्ट में मिलता है, यानी कि टोटल ड्रॉप्स के बाद, प्राइमरी के ड्रॉप्स के VP में प्राइमरी का ड्रॉप को घटाया तो EP मिला, और फिर उसके बाद टर्न रेशियो के रेफरेंस में आपको ES मिल गया, और ES में जो फर्दर ड्रॉप को माइनस किया तो आपको VS मिला। तो यहाँ पे क्या है, हमने पहले प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज मालूम किया EP, उसके लिए क्या हुआ, हमने प्राइमरी में जो वाइंडिंग में ड्रॉप आ रहा है किसकी वजह से, प्राइमरी करंट की वजह से, उसको रिड्यूस किया, तो वी गॉट इट्स दिस एज VP हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसमें क्या है, यहाँ आपका IP का एक्सप्रेशन आ रहा है, IP के एक्सप्रेशन को आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ZP के रेफरेंस में और इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो यू गॉट दिस प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज एट दिस फैक्टर, दैट इज 6891 माइनस J3। और तो अब लेट से ES आपको मालूम करना है, ES क्या है, सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, इसको भी रिवर्स लेना होगा क्योंकि सारा प्राइमरी में जाता है, नो यू हैव टू गो टू, तो इस रिवर्स के कंडीशन में भी जैसे आपने प्राइमरी में देखा था IS बाई N, ये ES बाई N आता है, ओके, यानी कि टर्न रेशियो से आपको इसको डिवाइड करना होता है। तो ये आपका ऑलरेडी EP आ रहा है, EP आपको मालूम है, EP इज कमिंग एज दिस, तो अगर EP को यानी ES निकालना है तो ये क्या होगा, EP बाई N, दिस इज EP बाई N, तो EP बाई N को डिवाइड करेंगे किससे, 60 से किया, N इज 60, तो आपको ये फैक्टर मिल गया। व्हाट इज दिस, दिस इज ES रिवर्स्ड, सो दिस इज ES रिवर्स्ड, ओके, इसीलिए आपने N से इसको डिवाइड किया है। सो दैट इज
what you got secondary induced voltage. Okay, that is what they have. आपको एक्चुअल रेशियो, नॉमिनल रेशियो अबाउ कंडीशन, तो व्हाट चेंज शुड बी मेड इन द प्राइमरी टर्न्स. तो प्राइमरी टर्न्स में जो करेक्शंस है दैट यू कैन फाइंड आउट, वी विल कीप दैट इन माइंड. इस चीज़ को हम आगे फर्दर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे. उससे पहले ये ले लेते हैं टू करंट ट्रांसफॉर्मर. करंट ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेम नॉमिनल रेशियो, यहीं से इसका कनेक्ट, नॉमिनल रेशियो इज गिवन एज 500 to 50, यानी कि प्राइमरी पे कितना दे रखा है, नॉमिनल रेशियो इज गिवन एज 500. ओके, एंड सेकेंडरी करंट आप देखिए प्राइमरी पे कितनी लार्ज करंट है 500, और सेकेंडरी पे कितना आ रहा है वैल्यू, ओनली 5 एम्पियर. कौन सा टेस्ट है, दे आर नंबर ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग टेस्ट मीन्स दे आर कपल ऑफ टेस्ट इन द करंट ट्रांसफॉर्मर. पिछली बार डिस्कशन भी हुआ था, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी था और सेल्स भी था. सेल्स बी इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड फॉर टेस्टिंग ट्रांसफॉर्मर. सो विद द करंट इन द सेकेंडरी ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर adjusted, okay, secondary of the standard transformer adjusted at its rated value, the current in the middle conductor A is expressed with respect to the current in the secondary of the standard transformer. और ये सेकेंडरी को आपने कैसे लिया है, एज ए रेफरेंस. नाउ इट इज़ नोन दैट द स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर हैज़ ए रेशियो करेक्शन फैक्टर विच इज़ ऑल्सो नोन एज RCF, that is given as 1.0015 and the phase error is given as 0, this is given as +8. तो आपको मालूम क्या करना है, you have to find out the RCF, okay, in new situation, as the phase also the phase angle error of the transformer under test. टेस्टिंग में आपको RCF मालूम करना है. ओके, पहले से जो स्टैंडर्ड है उसका दे रखा है RCF, यहाँ पे आपको मालूम करना है अंडर टेस्ट के लिए. अंडर टेस्ट में फेज एंगल एरर और RCF भी. तो लेट्स से सी दिस. Nominal ratio is 500 divided by 5, okay, so that will come as 100. ISS is the secondary current of the standard transformer. S is for standard and S is for secondary, so that is given as 5 ampere दे रखी है. Since ISS is the reference, जो secondary जो standard transformer की secondary current है उसको क्या दिया हुआ है, as a reference मानना है. तो ISS is given as 5 plus J0, okay. So now del I विल बी इक्वल टू, अगर इसको देखिए तो ये एंगल है -126.9 डिग्री, डेटा में 126.9 डिग्री. आई थिंक दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वहाँ थोड़ा सा मेंशन नहीं हुआ है. तो अगर इस 126 डिग्री को आप यहाँ एज ए कॉस थीटा ले लेते हैं और साइन के रेफरेंस में यहाँ 126.9 ले लेते हैं, तो यानी कि डेल आई का एक तरीके से क्या हुआ, आपने रिजॉल्व कर लिया, एक रियल कंपोनेंट में और एक इमेजनरी कंपोनेंट में. सो करंट इन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्या होगी, दैट इज, याद रखिए अगर यहाँ ISS होता तो ये होता स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर, ये SX है, मीन्स दिस इज द करंट इन द, दैट इज अ सेकेंडरी करंट इन द ट्रांसफॉर्मर अंडर टेस्ट. ओके, ये क्या होगी, ये जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी करंट है उसमें से अगर हम ये माइनस कर देते हैं जो करंट का चेंज है, जो एरर है, तो दैट वी विल गेट एज द करंट इन द ट्रांसफॉर्मर अंडर टेस्ट. दो ट्रांसफॉर्मर है, एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर में देयर इज वन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर, देयर इज अनदर ट्रांसफॉर्मर अंडर टेस्ट. तो अंडर टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि अगर जो सेकेंडरी करंट इन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर है उसमें से अगर ये डिफरेंस ऑफ करंट जो डेल आई आ रहा है, जिसको हमने अभी रिजॉल्व करके किया है, क्या है, रेफरेंस हमारा था सेकेंडरी का करंट, दैट इज़ 5 एम्पियर, दैट इज सेकेंडरी करंट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर. उसको हमने एंगल्स में 126 इज़ द एंगल, जो इस यहाँ डेटा नहीं दिया हुआ है उसको आप इंक्लूड कर लीजिए, 126.9 एंगल जो है टेस्ट एंगल है. तो टेस्ट एंगल को आपने रिजॉल्व कर लिया रियल और इमेजनरी कंपोनेंट्स में, और उसको क्या है, उससे डेल आई आ जाएगा. यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन लें तो दिस इज 0.05, ओके, इस करंट को दिस इज डेल आई, और इसके करंट एक्सप्रेशन को अगर आप -j से 126 डिग्री से ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है, अगर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 0.05 और
126, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने से डेल आई आएगा, और उस डेल आई को अगर आप स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर की करंट से माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दिस ISS माइनस डेल आई which will come as equal to 5.03 and J 0.04. ओके, सो दिस अगर इसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे एज ए सिंगल वैल्यू इंस्टीड ऑफ कम्प्लेक्स वी विल चेंज इट टू द रियल वैल्यू, सो देन दिस विल कम एज 5.03 एम्पियर. ओके, तो एंगल बिटवीन अगर देखें ये क्या है, सेकेंडरी करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर अंडर टेस्ट, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन मेथड इज द बेस ऑफ द सिल्सबी टेस्ट मेथड. सिल्सबी में आप कंपेयर करते हैं एक टेस्टिंग ट्रांसफार्मर को विद स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर. तो ISX क्या है, ये सेकेंडरी करंट है इन द ट्रांसफार्मर अंडर टेस्ट, और ISS क्या है, दैट इज ए सेकेंडरी करंट इन द स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर. तो इनके जो बीच का जो एंगल आता है दैट विल बी इक्वल टू, ये जो आपका पहले वैल्यू दिया हुआ होगा 0.04, क्वेश्चन में थोड़ा डेटा ये भी फर्दर इंक्लूड करना है, दैट इज़ मिसिंग. सो इसको अगर डिवाइड कर दें हम किससे, ISX से, तो हमको एंगल मिलेगा. तो यानी कि 0.04 डिवाइडेड बाई 5.03, तो दैट विल कम एज 27.3 एंड दैट विल बी इन रेडियन. ओके, तो इसमें क्या हुआ, ISX को हमने बेसिकली जो 5.03 एम्पियर है इसको डिनोमिनेटर में लिया, और ये आपको ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन होगी 0.04. ओके, 0.04 यहाँ पे RCF के वैल्यू में ये मिसिंग है डाटा. तो ये आपने देखा डिवाइड किया तो 27.3, जैसे कि पिछले स्लाइड में भी मेंशन था. अगर फेज एंगल बिटवीन ISX रिवर्स्ड, प्राइमरी की तरफ रेफरेंस लेके जाना है, और IP अगर ये कैलकुलेट करना है, तो देखिए 27.3 तो आपका एंगल आ ही रहा है, और एरर दे रखी है कितनी, +8. इफ़ यू रिकॉल दिस, तो ये दे रखा है जो एरर है, फेज एरर, दैट इज़ गिवन एज +8. तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा फिर, क्योंकि प्लस की एरर है तो प्लस में ही आप ऐड करेंगे. तो आपने अभी निकाला था फेज एंगल, दैट वाज 27.3, तो उसमें अगर +8 ऐड कर लेंगे उस एरर को, तो यू विल गेट एज 35.3. सो दैट विल बी द आंसर. अब रेशियो करेक्शन फैक्टर को लें, उसमें भी एरर दे रखा है कि रेशियो करेक्शन फैक्टर RCF फॉर स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर इज गिवन एज 1.0015, दैट इज गिवन देयर. ओके, अब एक्चुअल रेशियो अगर स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर का मालूम करना है, तो दैट इज इक्वल टू रेशियो करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल रेशियो. क्योंकि याद रखिएगा कि एक्चुअल रेशियो डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेशियो जो होता है वो RCF होता है. तो यहाँ अगर RCF को नॉमिनल रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको RSS मिल जाएगा, जिसको कि एक्चुअल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं. ओके, अदरवाइज RCF इज इक्वल टू एक्चुअल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर. ओके, स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय द नॉमिनल रेशियो. तो वो नॉमिनल रेशियो आपने RCF में मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स द सेम थिंग, दैट विल बी इक्वल टू RS, दैट विल बी इक्वल टू RS. तो RS में आप RCF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1.0015. ओके, एंड आपने नॉमिनल रेशियो निकाला हुआ है, दैट इज इक्वल टू 100. तो अगर आप 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि RCF देखिए दिया हुआ है, दैट इज 1.0015, तो उससे आपने किसको मल्टीप्लाई किया है, दैट यू हैव मल्टीप्लाइड विद द नॉमिनल रेशियो. और नॉमिनल रेशियो कितना है, 100, दैट इज देयर. नॉमिनल रेशियो सिंपली रेटिंग के रेफरेंस में, दैट इज यस 500 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट इज इक्वल टू 100. तो उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो देन यू गेट RS यानी कि ये क्या है, एक्चुअल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर. सो दैट विल कम एज 100 इंटू 100.15, ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी 100.15. तो प्राइमरी करंट क्या होगी, प्राइमरी करंट विल बी बेसिकली RS, जो कि एक्चुअल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर है, मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंडरी करंट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर. सो अगर द प्राइमरी करंट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर, जो भी आपका इवेल्युएट होके आया है वो कितना आया है, 100.15. उसको अगर आप सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की
मीन्स स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द प्राइमरी करंट. सो आर एस इज नोन टू यू. ओके, आर एस इज कमिंग एज 100.15 और आई एस एस इज ऑल्सो नोन टू यू. ओके, आई एस एस आपने एवेल्यूएट किया हुआ है, गिवन है. तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दैट इज आई एस इज 5 एम्पियर क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल है. इसमें सेकेंडरी करंट दे रखी है दैट इज़ 5 एम्पियर. ओके, तो 5 एम्पियर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एक्चुअल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर से, और जब अगर स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर से मल्टीप्लाई किया तो यू गॉट एट 500.75. सो दैट विल बी द प्राइमरी करंट दैट इज आई पी. ना एक्चुअल रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर टेस्ट अगर उसको देखें, ये आर एक्स है. याद रखिए पहले जो थी वैल्यू वो थी आर एस, वो क्या थी स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर की. ओके, क्या था वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो ये आप देख रहे हैं एस, एस इज फॉर स्टैंडर्ड एंड दैट इज एक्चुअल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर जिसको आपने निकाला था 100.15. अब क्या है एक्चुअल रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर टेस्ट. तो अंडर टेस्ट जो होता है उसके लिए एक्स सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू आई पी अपॉन आर आई एस. तो आई पी आपने वैल्यूएट कर लिया है, कितना है 500.75. तो इसको अगर आई एस से डिवाइड कर लेंगे, आई एस भी आपका वैल्यूएट हो चुका है दैट इज इक्वल टू 5.03. ओके, 5.03. ये देखिए आई एस एक्स. सो दैट इज आई एस एक्स, आई एस एक्स भी वैल्यूएट है 5.03. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने. तो आई पी अपॉन आई एस विल बी द एक्चुअल रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ओके, दैट इज प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय द सेकेंडरी करंट. सो दैट इज इन केस ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर. करंट ट्रांसफॉर्मर में आप यही रेशियोज लेते हैं. तो प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, तो ये दोनों वैल्यूज़ को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट 99.55. ओके, सो दैट विल बी द एक्चुअल रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर अंडर टेस्ट जिसको हमें मालूम करना था. अब रेशियो करेक्शन फैक्टर ऑफ टेस्ट अंडर ट्रांसफॉर्मर. तो रेशियो करेक्शन फैक्टर ऑफ टेस्ट ट्रांसफॉर्मर, तो दैट इज अगेन आर सी एफ एक्स. तो इसमें क्या होगा, आप इसमें लेते हैं एक्चुअल रेशियो डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेशियो. रेशियो करेक्शन फैक्टर इज ऑलवेज एक्चुअल रेशियो डिवाइडेड बाय द नॉमिनल रेशियो. तो एक्चुअल रेशियो आपका आ ही गया 99.55. ओके, अंडर टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के लिए, क्योंकि आपको अंडर टेस्ट ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू रखनी है. और नॉमिनल रेशियो भी आपको मालूम है 500/5 उस करंट ट्रांसफॉर्मर का. तो इसको क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे. तो फाइनल आंसर दैट वी विल गेट एज ए रेशियो करेक्शन फैक्टर of the trans transformer that will be equal to 0.9955, 99.55 divided by 100. So that is the RCF जो हमको डिटरमाइन करना था किसका, टेस्ट ट्रांसफॉर्मर का, जिसको कि हमने कंपेयर किया था स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर. सो दिस इज these formula that you must remember. Number one, this formula, okay, कि primary current divided by secondary current. Number second is this formula that you already know, RCF is equal to actual ratio upon nominal ratio. Okay, and then of course this fact that X is represents the transformer under test and S represents the standard transformer. So we will continue with the next unit in the next discussion. Thank you very much, and I recommend that you solve more numericals. That you must focus on two major formulas, that is one on the phase angular error and another on the ratios, different ratios. So let's meet again in next lecture. Thank you very much.